Hello there. Riddhima Chabra, Shruti N. Yeah, Ritu Dalal. Hi. Hi. Adi. Puniti. I have autistic son of 9 years. Hi Ritu. आपने ही शायद अभी अभी मैसेज किया था ना इंस्टाग्राम पे कि इंस्टाग्राम कैसे ज्वाइन करें लाइव, तो मैंने लिखा था अभी स्टार्ट नहीं हुआ है. या हाय, हेलो 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 एवरीबॉडी, कैसे हैं आप लोग? यू ऑल आर गुड? या ओके, सो पीपल, today is a very special session. Yeah, today's session we have somebody very close to my heart and very special. And Maya says, I have an autistic boy. Hi Maya. This is mother of a young 27 now, 27-year-old, I think 28 if I'm not wrong, Rishabh Raj Bhatia. And last time I was talking to her, she's my dear friend, and she said, I was talking to her and I said, so Rishabh is assistant manager, and she said no, he's become deputy manager, yeah, with Axis Bank. So I was like, amazing, amazing, amazing. Yeah, Deepa, hi Deepa. She's my super good friend. She used to be in Mumbai, and while she has shifted from Mumbai, our children's friendship still remains. So Jay and Rishabh are good friends, and Jay, when Rishabh comes to Mumbai, he goes to meet him, or at times he travels. When he was in Delhi, he would travel from Delhi to Jaipur, and now also he's saying that I will September, October, I will go to meet Rishabh. And today I want to just shut up, keep quiet, and I do a lot of talking. I want all of you to listen to this brave heart, this amazing mother, and I've had the privilege of being Rishabh's teacher. And so we were doing basically social skills, Rishabh, Isha and Jay, and they happen to be the best of friends. And Neeru, I just want you to know I'm so proud of you for doing such a fantastic job with this boy, and I want you to take up this platform today and talk to people. I don't see they'll be joining now. There, okay. Yeah, I think she is there. Neeru, are you there? Yes, I'm there. Can you see me? Hi. I cannot see you for some reason. Can everybody else see Neeru? Can people see Nirupama? Please write in the chat, can you see her? Can you guys see her? Riddhima Chabra. I can see the comments all right, but my screen is blank. Everybody, now I can see you. I think, yeah. नीचे कर तेरा थोड़ा सा. There you go. Let me Hi, such a long adjust time. my camera. Hi. Yes. Good to see you. Yes, after a long time. After a long time. I think I'm visible properly now. Yes, we can all see you. It's such a delight to see you. ना सिर्फ हमारे बच्चे घूमने जाते थे, मॉल जाते थे, आपस में मिलते थे, हम भी कभी कभी लेडीज डे आउट करते थे. तो क्यों चली गई? Yes. हमारे बच्चे फ्रेंड्स बने, हम भी फ्रेंड्स बने. हाँ, हम भी फ्रेंड्स बने. So yes. So ladies and gentlemen. लेकिन तुरंत क्लिक हो गया. हाँ. Yes. हाँ. So these were three friends, Rishabh, Isha and Jay. And these were three ladies who were friends, Srijata, Nirupama and Rajni. And I still have photos of वो Mom's Cafe, कौन सा Grand Mom's Cafe कहाँ हम गए थे. हाँ. And then New Year party celebrations, and we had fun. Yes, we had fun. Yes. Yes. Our families became
friends. बहुत Families मजा आ रहा है. became friends. Yes, yes. Yes. So starting from students, then it went on to become a lot more. And Hmm. I just want you to know, Niru, that I am so in awe of mothers like you. Rishabh came into my life much later. Okay. Like I was saying, I had the privilege of coaching him on social skills. We almost did social skills for 1, 2 years, kind of, yeah, 1 to 2 years. Yeah, Uh, he completed BCA, I think. After that, we met. So, mm. because he Yeah, was also longing for a friend and all. yes, So, yes. So I want to tell one thing to everybody here. yeah. I had joined some 10 plus groups, and I was Okay. constantly putting the messages. Hey there, I'm a certified peers social skills trainer, and I'm looking for children who will become friends with my son. And these were groups, local groups, okay? Hmm. They would ban me. They would ban me. You remember? The Yeah. FFA group and all of that. They would Yeah. ban Yeah. me. Yeah. Yeah. They, They they would threw ban you me. out of the group. They threw me out of the group because I was so business oriented. Because I was looking for children to train them on social skills. And here were two people out of these 10 groups of 100 plus people each, thousand people in total. Okay, that time तो 100 के ऊपर नहीं होता था. So 1,000 people in total, yeah, 10 groups, and they kicked me out. And this lady here, she figured out, and I said, I am looking for children to make friends with me. And okay, and it is so sad for the autism community that people do not believe that their children can make friends. Yeah, Hmm. Yes, and these were actually, two people, continue. okay, Nirupama and Srijata, who caught hold of me, who found out who I was, No, who no, tracked no, me, no. कहा थी. No, no. Srijata may have found you. Let me correct you here. I made you join that group हाँ, that time. We knew it. We knew each other earlier. हाँ, I, oh yeah, I Srijata, made you yeah, join that Srijata group, from there. thinking Yes. that many people will get benefit out of it, हाँ, but they took it yeah, wrongly. Yeah, yes. we knew each other. Srijata found me, of course, from the group Srijata, and all. yes. So in total, three people out of 1,000. This is how we believe our children. Okay, this is how much faith we have in our children that they can make friends. Yes. And these three children have carried on up until now as adults. Those also. who are destined to meet. And how much We they had have fun. learned, how much they have taught us. है ना? True. And over to you, Nirupama. I want you to share your story with the world. I want you to tell them how important it is not to just trust their child seeing what they're seeing presently, because what I saw in Jay as a baby and what you saw in Rishabh as a baby is very different from where they are today. Right? Yes. Yes. And today, ladies and gentlemen, just one last thing. Jay appeared for his interview for MBA, and he would be joining MBA. Yeah, he would be joining the master's course MBA on 4th of September. That's when the course starts. Yeah. See, this is possible. From where we started when we used to think कि नर्सरी में भी बच्चा नहीं बैठता था, है ना? Please carry on. Yeah. तो सबके साथ वही सेम जर्नी है. ऑटिज्म है ही ऐसा कि बच्चे का पोटेंशियल माँ ही निकाल सकती है, उसके अलावा कोई नहीं. और पोटेंशियल उसमें है क्या, फर्स्ट यू हैव टू कम टू नो दैट, है ना? मेरे को इतना पता है, जब ऋषभ का डायग्नोसिस हुआ था, ही वॉज कंप्लीटली नॉन वर्बल. इवन साउंड भी नहीं थी उसके अंदर. तो मैंने उसकी आवाज भी नहीं सुनी थी कि वो कुछ बैबलिंग करता हो. मतलब व्हेन ही वाज
सम मंथ्स ओल्ड, 10 मंथ्स, 11 मंथ्स, तब भी मेरे को याद है वो खिड़की पे खड़ा रहता था, लेकिन कभी भी बैबलिंग साउंड भी नहीं सुनी थी उसकी मैंने, है ना। और फिर उसके बाद उसने जब 1.5 years का हुआ, तब तक भी मेरी फ्रेंड के बच्चे जैसे चिड़िया बता रहे हैं, मून बता रहे हैं, ये तो नहीं बता रहा है। और मुझे पता भी नहीं था इतने बच्चे को बताना चाहिए, 9-10 मंथ्स के बच्चे को मून और चिड़िया या ट्री किधर है। मैंने कहा यार उनके बच्चे बता रहे हैं, ऋषभ नहीं बता रहा। एनीवेज जब मैं मम्मी के पास गई तो फिर इसकी दादी नानी ने ही मेरे को बोला कि नहीं एक बार डॉक्टर को दिखा लेते हैं। फिर पहले तो उनको लगा बच्चे देर से बोलते हैं, ठीक है कोई बात नहीं, 3 साल के बाद भी बोलते हैं बच्चे, चलता है। लेकिन बोलना से अलावा हमको ये था कि ही वॉज नॉट रिस्पॉन्डिंग टू हिज नेम ऑल्सो, तो बुलाने से नहीं देख रहा है हमारी तरफ। फिर उसका मतलब हियरिंग टेस्ट वगैरह हुए सारे, एंड आफ्टर दैट वी रियलाइज, वी केम टू नो कि दैट ही हैज ऑटिज्म व्हेन ही वाज 1.5। तो एंड डॉक्टर ने उसको पॉइंट आउट करके बोला था उस टाइम, वो मेरे को वो सीन नहीं भूलता, क्लिनिक में गोल 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 घूम रहा था। हम डॉक्टर से बात कर रहे थे, इसको एसी रूम पसंद है, क्लिनिक वॉज एसी, तो वो अंदर रूम में गोल गोल घूम रहा था। एंड डॉक्टर ने पॉइंट आउट करके बोला ये जिंदगी भर ऐसा ही रहेगा, ये इसको ऑटिज्म है। एंड आई वॉज मतलब टेकन अबैक कि एक तो ये वर्ड ही नहीं सुना था, दूसरी बात ये जिंदगी भर ऐसा रहेगा, मतलब मुझे लगा जिंदगी भर गोल गोल घूमता रहेगा। तो ही इज कंप्लीटली लॉस्ट। तो मैं 45 मिनट्स घर आके रोई हूं। 45 मिनट्स बाद एकदम से जैसे मैंने अपने पापा का चेहरा देखा, मैंने कहा नहीं, ये टूट जाएंगे मेरे को ऐसा देख के, ये मुझे नहीं करना। इससे पहले कि ये टूटे मुझे अपने आप को संभालना है। और मैंने कहा कोई नहीं रोएगा, मेरे को भगवान ने काम दिया है, मैं कीड़े मकोड़ों की तरह यहाँ मरने नहीं आई हूं कि आई जी के चली गई। अब मेरे पास एक मिशन है कि मेरे बच्चे को मुझे ठीक करना है। और ये जो डॉक्टर ने ये जो मतलब भगवान ने मुझे जो बच्चा दिया है, ये आई एम गोइंग टू सेलिब्रेट हिम। ये मेरे पास एक काम है इसको इंडिपेंडेंट बनाने का, अब तो बस वो मैं करूंगी। तो बस फिर उस दिन से मैंने मतलब मैं डिनाइल में गई ही नहीं। 45 मिनट रोई हूं, मैंने कहा ना डिनाइल में गई, बस देन एक्सेप्टेंस तुरंत। एंड वो आ गई तो अपने आप को लेके काम पे लग गई। उसे मैंने पीछे मुड़ के नहीं देखा। उस टाइम ऑटिज्म नहीं पता था वर्ड क्या होता है, ना गूगल था, ना व्हाट्सएप था, ना मैं कोई ग्रुप्स थे सपोर्ट ग्रुप्स, ना मैं किसी को जानती थी। तो वी वर इन जमशेदपुर दैट टाइम। वहां से फिर हमने इसके टेस्ट वेस्ट करा के देन वी शिफ्टेड टू मुंबई कि चलो वहां पे कुछ थेरेपीज होती होंगी, कुछ पता चलेगा, बड़ा शहर है। वहां जाके वी फाउंड आउट कहाँ कहाँ कौन से डॉक्टर्स हैं। तो वहां पे अभी जैसे हर गली कूचे में खुल गए हैं, अवेयरनेस है लोगों में, और सेंटर स्पीच थेरेपी और ये ओटी वगैरह खुल गए। उस टाइम तो बड़े बड़े हॉस्पिटल्स में ही होता था और कहीं नहीं। तो वी यूज टू ट्रैवल अ लॉट, और फिर वहां जाके धीरे धीरे उसकी स्पीच ओटी करानी शुरू करी। एंड बहुत सारे चैलेंजेस आए, लेकिन एक बात बताओ, We लोग made it. हमें जनरली बोलते हैं कि तुम्हारे बच्चों के तो बिहेवियर नहीं थे इसलिए वो सक्सेस हो गए। अब पता है यहाँ पर क्या है, जो लोग ऐसा बोलते हैं उनको मैं ये चीज बता दूं कि बिहेवियर बचपन में नहीं होते। बचपन में इन द सेंस जब वो 2-2.5 साल के हैं तब क्या ही बिहेवियर है, वो आपसे पैम्पर हो रहा है, घर में है। बिहेवियर कब आता है, जब बच्चे के पास वर्ड्स नहीं है बोलने के लिए और उसके अंदर फीलिंग्स हैं। सो जब फीलिंग्स हैं उसके अंदर, अब वो उसको एक्सप्रेस कैसे करे जब उसके पास वर्ड्स नहीं है। तब वो बुली हो रहा है स्कूल में, या उसको खाना पीना मांगना है, या उसको वॉमिटिंग हो रही है की सेंसेशन हो रही है, या कुछ भी दर्द है, तो वो किस तरह से हमें बताएगा, दैट टाइम बिहेवियर कम्स। एंड माओ के लिए बेटर ये है एक्सक्यूज दे के वो अपने आप को भुलेखे में रख रही हैं और अपने आप को ही धोखा दे रही हैं। इससे अच्छा वो बात को समझें कि हम से पहले काम करने का तरीका यही है कि एक्सप्रेशन सिखा दो, चाहे वो किसी भी फॉर्म में हो। वर्बल बच्चा है तो वर्बली सिखाओ, नॉन वर्बल है तो कार्ड क्यू जो मतलब से करना है आपको, आप उसको कम्युनिकेट करना सिखा दो, उसका बिहेवियर अपने आप खत्म हो जाएगा। बस तो वो चीजें हमारे साथ भी आई, क्योंकि उसको जब बिहेवियर जैसे जैसे इश्यूज आते थे ना, मैं उसको एज अ अपॉर्चुनिटी लेती थी। अरे यार आज इसको ये मतलब जैसे रो रहा है चिल्ला रहा है, मुझे लगा कैसे
कैसे पता लगेगा ये किस वजह से रो रहा चिल्ला रहा है? तो उसने एक बार मेरे कान के नीचे भी बजाया अच्छे से, ऋषभ ने कान के नीचे बजाया इन द सेंस लिटरली नहीं, ही फेल डाउन। और हम क्या होता है, हम बच्चे को बार बार टोकते हैं, तू ऐसे नहीं कर सकता, तू ये नहीं कर सकता। मुझे याद है कि मैं ऐसे जब बोलने लगी, ऋषभ जब 4-5 साल का हो गया, तो वो मेरे पीछे पीछे भागता हुआ आ रहा था और अचानक से गिर गया। तो मैं पीछे जैसे ही मुड़ी, क्योंकि जल्दी में थी, थेरेपी जा रही थी, तो मेरे को देखते ही ना ऐसे डर के बोलता है, तो तुम देख के क्यों नहीं चलते हो? मतलब कि वो अपने ऊपर ही ले रहा था कि मम्मी अब मुझे यही बोलेगी कि देख के नहीं चल सकता। तो वो उस तरह से उसने मुझे बोला, तो मुझे एकदम लगा, मैंने कहा नहीं, यहाँ पे तो अच्छे से मेरे को एकदम से जैसे लगा तमाचा ही पड़ा है कि आई शुड नॉट ब्लेम हिम फॉर वॉट एवर द बिहेवियर इज और वॉट एवर, देयर इज अ रीजन फॉर दैट। तो मैंने इसको बोला, नहीं बेटा, ऐसे नहीं। मैंने कपड़े इसके झाड़ के खड़ा किया, मैंने कहा चोट तो नहीं लगी तेरे को कहीं पे? मैंने वही अपने आप को करेक्ट किया, जो इमीडिएट हम लोग बिहेवियर हमारा भी इम्पल्सिव निकल जाता है, तो वो चीज उसको करेक्ट करके मैंने उसको समझाया। तो देन मतलब आई आस्क्ड हिम कि चोट तो नहीं लगी, एंड देन आई सेड नहीं बेटा, तेरी गलती नहीं थी। उस दिन मैंने ठान लिया कि ना तो कभी इसको थप्पड़ मारूंगी रोने पे, ना इसके ऊपर चिल्लाऊंगी, ना इसको ब्लेम करूंगी कि ऐसा क्यों ऐसा क्यों। लेकिन इसने, उसके बाद से मैंने कभी नहीं किया। उसके बाद ये अपने आप ही मेरे को धीरे धीरे मैं इसको एक्सप्रेशन सिखाती गई कि क्यों क्या चीज कैसे हो रही है, एंड वो करता चला गया। एंड दीपमाला मैम हेल्प मी अ लॉट इन दिस। मतलब शी वॉज एन एंजल इन माई लाइफ, शी इज स्टिल एन एंजल इन माई लाइफ। उन्होंने बहुत अच्छे से मुझे सब चीजें सिखाई। तो ऋषभ का मतलब जैसे ना कुकर का प्रेशर निकल जाने के बाद ठंडा हो जाता है, वैसे एक्सप्रेशन आने के बाद वो ठंडा हो गया। नो बिहेवियर एट ऑल, जो उससे पहले मेरे को परेशान कर रखा था, रोना चिल्लाना, बुली हो रहा है स्कूल में, वो सब। अच्छा सुनो, तो है ऋषभ उधर? एक बार मैं सोच रही हूँ जय से हाय करा दें। 1 मिनट बुलाती हूँ, हाँ, 1 मैं मिनट, भी जय को गिव मी अ बुलाती हूँ। सेकेंड। हाँ, मैं जय को बुलाती हूँ। जय, जय। ऋषभ बेटा 1 सेकेंड आना। हाय ऋषभ भैया, कैसे हो आप? है ही नहीं अभी, तो रुक जा, आ रहा है, आ रहा है, ऋषभ भी आ रहा है। आजा, ये ले स्पीकर पहन ले। ऋषभ जय से बात बैठ करनी है, इधर, बैठ जा। ले आजा, sit here. Hi Jay, hello हाय ऋषभ everyone. भैया, हाउ आर यू? I'm fine. फिर मैं प्लान कर रहा हूँ आपके पास आने के लिए सितंबर या अक्टूबर में। मैं अपने घर में शिफ्ट हो गया हूँ। जब आऊंगा तब हम जब आओगे तब हम मजे करेंगे। हाँ वो अपने घर में शिफ्ट हुआ है, क्या मांगेगा? हाँ, पार्टी कौन से घर में हो? न्यू हाउस में जो बन रहा था ना, जब लास्ट टाइम गया था तब नहीं गया। राजापा। मैं हाँ, राजा पार्क। ओके, फिर पार्टी कब दे रहा है? पार्टी जब आओगे तब दे दूंगा। हाँ, मैं सितंबर या अक्टूबर में जब अच्छा, उसको आज ये तो बता, क्या होके आया तू? मेरा MBA का इंटरव्यू क्लियर हो गया है और अभी वो Congratulations, सितंबर you are cleared. हाँ, फिर मेरा कोर्स भी Congratulations, स्टार्ट हो MBA जाएगा। में सेलेक्ट हो गया। हाँ जी। उसको पूछ, मिस करता है? मिस करता है तू मेरे को? तू नहीं, क्या बोलेंगे, बड़ा है। मिस करते हो आप मेरे को? हाँ, मैं आपको बहुत मिस करता हूँ। मैं आपको मिस करता हूँ। मैं टॉप के बारे आपका जॉब कैसा चल रहा है? अच्छा चल रहा है। चलो ठीक है, अभी मम्मी बात कर ले, बाय तो करके जाओ। बाय। बाय। बाद में डेट Okay. भी फाइनल करूंगा सकते हैं।
हाँ जी, ये दोनों खुश हो जाते हैं एक दूसरे को देख के। हाँ अभी भी आए थे तो दोनों अलग से एक होटल में स्टे किया था, हाँ। तो बहुत सारी दोनों मेमोरीज ने है एंजॉय नीरू। किया था। इन्होंने ये गए हाँ थे कहाँ पर पता नहीं, वो शाही दरबार में ज्यादा खा लिया, पैसे थे नहीं। वहां से हमने मतलब कितनी चीजें सिखाई है इनको कि पैसों का कैसे हिसाब रखना है और क्या करना है। बर्थडे पे होगा तो किसको पार्टी देनी है, और जब तुम वैसे जाओगे गेट टुगेदर्स करने तो तुम लोगों को कंट्रीब्यूशन कैसे करना है। एंड नाउ दे नो एवरीथिंग। बहुत सारी गलतियां इन्होंने की। जय ने बर्थडे पार्टी दी और सबसे ज्यादा खुद ही उसने खरीद लिया। अब उसके पास बाकियों को पार्टी देने के लिए पैसे नहीं बचे। पर ये सब कुछ तभी हो सका है क्योंकि हम लोग लगे रहे, सिखाते रहे। अब लगे जय रहे। और सबसे इंडिपेंडेंटली। बड़ी बात, हाँ एक चीज और कि हम ये दोनों कहीं भी जाते थे तो हमने पहले इनके रास्ते और इनको वो जो अपन ने कैलकुलेटेड रिस्क लेके अकेले ट्रैवलिंग सिखाई, दैट हेल्प्ड अ लॉट। कि फिर Yes. हम निश्चिंत होकर घर बैठे थे कि ये कहीं भी जाएंगे वापस घर तो आ ही जाएंगे। टोटली वो चीज है। यस यस। हाँ प्लीज कैरी ऑन विद योर स्टोरी। फिर उसके बाद स्कूलिंग कैसे रही, कॉलेज कैसे रहा, सब यही बोलते थे, ओ माय गॉड नीरू आ जाओ, ऐसे होता था। तो हो सो आई विश तो धक्के हर बड़े जगह हमें ऐसे होता था। धक्के। स्कूल में हर महीने मुझे बुला के बोला जाता था इसको स्कूल से निकाल लो, हर महीने। एंड कितना स्ट्रेस होता होगा। नॉर्मल बच्चों के पेरेंट तो इस चीज का अंदाजा भी नहीं लगा सकते। नॉर्मल मीन्स हमारे बच्चे अब नॉर्मल नहीं है, दे आर अबव नॉर्मल। बेटर सो टोटली। तो वही चीज, बिकॉज ऋषभ का यही कहना है, आइंस्टाइन न्यूटन सब ऑटिस्टिक थे, अगर वो ना होते तो ये दुनिया ऐसी ना होती, वो इन्वेंशन ही ना होते। सो वी सी दुनिया डिफरेंटली, सो वी आर डिफरेंटली एबल, नॉट डिसेबल। यस क्योंकि मोबाइल डिसेबल हो गया तो यू कैन नॉट मेक इट एबल अगेन, यू कैन नॉट इनेबल इट ना। यस यस। तो वो चीजें हैं, तो वहां से बच्चों को ये चीज सारी समझ आना, उनका सेल्फ एस्टीम हाई रखना, बहुत सारी चीजें हुई कि हमने कभी उनको उनकी ये चीज को डाउन नहीं करने दिया। तो हाँ, हम कहाँ थे, हम बह जाते हैं फ्लो में हम। सो स्कूल कैसा रहा, कॉलेज कैसा रहा? हाँ स्कूल। तो स्कूल में ऐसे ही हुआ, हर महीने मुझे बोला जाता था कि इसको निकाल लो स्कूल से। क्यों निकाल लो? कभी ये आई कार्ड खींच रहा है किसी बच्चे का, कभी इसने वड़ा पाव खींच लिया किसी बच्चे का, है ना, कभी चिल्ला रहा है। अब ये सब चीजों के पीछे क्या वजह है, मेरे को ये तो पता था कि कोई तो वजह है। तो मैंने उन टीचर्स को बोलती थी, गिव मी 15 डेज, 15 डेज में ये बिहेवियर चला जाएगा। आप मुझे बस इतना एक मेरी हेल्प कर देना कि जैसे ही बिहेवियर आपको दिखता है उसको तुरंत मुझे बता दिया उसी दिन कि आज ये नई चीज दिखी। उसके बाद मेरे को कर्व करना इजी हो जाएगा। अदरवाइज आप अगर आपने हफ्ता भर बढ़ने दिया, 15 दिन बढ़ने दिया, देन गिव मी मंथ टाइम। ठीक है, तो मैं जो टाइम लेती थी ना, उस टाइम में उसको कर्व कर देती थी। मैंने 15 दिन बोला है तो उनको 16वें दिन वो बिहेवियर नहीं दिखता था। एंड इट वॉज वेरी सिंपल। आई यूज टू मेक हिम एक्सप्लेन एवरीथिंग कि जैसे इसने आई कार्ड खींचा तो वो मैंने कैसे छुड़वाया, इसका वड़ा पाव छीना तो वो कैसे छुड़वाया, सब पे मैंने अपनी टेक्निक्स अपनाई और वो धीरे धीरे बिहेवियर्स चले जाते थे। और इसको भी समझ आती चली गई, जैसे जैसे अंडरस्टैंडिंग बढ़ती चली गई वैसे वैसे बिहेवियर्स चले गए। लेकिन टीचर्स हर बार ये बोलते थे। तो 10th स्टैंडर्ड जब इसने वहां पास किया, 5th के बाद टीचर्स ने मुझे नहीं बोला, क्योंकि 5th में इसने मतलब उन्होंने किसी स्पेशलिस्ट को बुला के दिखाया कि अगर इसने बोल दिया इसको बाहर निकालना है तो फिर आज तो ये बाहर जाएगा। उस दिन मेरा इम्तिहान था, बाहर बैठी रही। मैंने कहा अगर ये थेरेपिस्ट इनकी पैसे खिलाई हुई नहीं हुई तो ये बोलने वाली नहीं है कि ऋषभ को निकाल लो, अगर ये सही की थेरेपिस्ट है तो। एंड वो जेन्युइन थेरेपिस्ट थी। उसने बाहर आते ही बोला ये तो आपके स्कूल का आइंस्टाइन है, इसको कल को आप बोलोगे प्राउडली कि हमारे स्कूल से पढ़ा है। उसके बाद टीचर्स ने मुझे कभी नहीं बोला, प्रिंसिपल ने। एंड 10th ये करके गया काजू कतली लेके स्कूल में, मस्त मेरी 10th हो गई। उसके बाद टीचर्स ने मुझे ये बात बोली, स्कूल वालों ने ये बात एक्सेप्ट करी कि हमने आपको बहुत टॉर्चर जैसे किया है, बहुत बोला है, आप रोए हो,
गिड़गिड़ाए हो सब का है, लेकिन आपने कभी ब्लेम स्कूल पे नहीं डाला, आपका एटीट्यूड बहुत अच्छा था, आपने कभी टीचर से लड़ाई नहीं करी, दैट्स व्हाई वी सपोर्टेड यू। अदरवाइज कुछ पेरेंट्स लड़ाई कर लेते हैं, ये सब दिखाते हैं, तो हम भी पेरेंट्स देख के ही सपोर्ट करते हैं। उन्होंने ये बात बोली और एक्सेप्ट करी कि आपकी जगह हम भी होते, बिकॉज अल्टीमेटली वो भी पेरेंट्स हैं, दे नो व्हाट दे आर डूइंग टू अस। सो वो भी अपनी जगह लिमिटेशन में है। और कॉलेज में भी ऐसा ही हुआ कि 12th में 11th में जब ये गया तो प्रिंसिपल ने बोला, वहां जूनियर कॉलेज होता है बॉम्बे में, तो उन्होंने बोला प्रिंसिपल ने कि नहीं, मैंने बोल के एडमिशन कराया था और नेक्स्ट डे ही उन्होंने इसको बोला कि इसको निकाल लो। मैंने कहा अभी तो कॉलेज शुरू भी नहीं हुए, फिर क्यों निकालूं? बोलते नहीं, आज हमने उसके फोन पे फोन किया था, उसने बोला कि नहीं मैं तो कंप्यूटर क्लास में हूं, मैं नहीं आ सकता। तो उसने प्रिंसिपल को ऐसे कैसे मना कर दिया? मैंने कहा पहली बात तो वो जब कंप्यूटर क्लास गया है, आप उसको, हम बच्चे को समझा रहे हैं कि आप जहां जाते हो वहां से सीधे घर आओगे। पहली बात, आप स्पेशल बच्चे के फोन पे फोन क्यों मार के आपने उसको बोला कि यहाँ आजा बीच में? आप मेरे को कॉल करो, आपको मिलना है तो मैं आपको नेक्स्ट डे मिलवा दूंगी उससे। देन दे रियलाइज्ड इट। नेक्स्ट डे ऋषभ को मैं मिलवा के आई एंड 11 फिर इसने जब फर्स्ट एग्जाम हुआ, फर्स्ट सेमेस्टर, ही टॉप्ड इन 3 सब्जेक्ट्स इन ऑल द 4 सेक्शंस। ब्लैक बोर्ड पे इसका नाम था, बुक कीपिंग में, इसमें उसमें सब में इसने टॉप किया था। प्रिंसिपल ने मेरे को कुछ नहीं बोला। 12th का जब ये एग्जाम देने गया, प्रिंसिपल को इसने पैर छूने गया, ये फेयरवेल पार्टी के दिन, तो उसको बोलती है योर मदर इज वेरी स्ट्रांग, मेक हर प्राउड। इसने आके मुझे ये बात बताई कि आज प्रिंसिपल मैम ने ये बात बोली है। सो दे नो। एंड बीसीए में जब गया फर्स्ट ईयर में, वहां जाते ही 15 दिन के बाद डीन ने बोला कि इसको निकाल लो। मैंने कहा क्या हुआ? बोलते वो क्वेश्चन बहुत पूछता है क्लास में। मैंने कहा मैंने फिर बाकी बच्चों से, डीन से तो मैंने जो अच्छे से किया हुआ ही, लेकिन उसके बाद मैंने क्लास के बच्चों से पूछा। कहते हैं मैम आंटी ये तो जो सवाल पूछता है ना, हमारी हिम्मत ही नहीं पड़ती पूछने की, और इसके जो सवाल होते हैं क्रॉस क्वेश्चनिंग, उसमें वो टीचर को खुद ही नहीं आते, तो इसको क्या समझाएंगे, इसीलिए इसको ऐसे करते हैं। तो मैंने कहा फिर सीधा इसको समझा देते हैं ना, सिंपल सी बात है। मैंने कहा जो बच्चा गोल गोल चक्कर काटता था, वो बच्चे को वहां बैठना सिखाया है, और अब वहां से स्टार्ट करके अब उसको सिर्फ इतनी सी बात ही तो मुझे समझानी है कि भाई मत पूछा कर क्वेश्चन, या ब्रेक में पूछ लिया कर, आप बता दो स्टाफ रूम में कितने बजे आना है, बस इतनी सी बात ही तो समझानी है। कोई बिहेवियर नहीं है, कुछ नहीं है। फिर मैंने इसको बोल दिया, मैंने कहा बेटा मत पूछ, उनको खुद ही नहीं आता, तो अपन घर पे करेंगे अपनी सॉर्टिंग। तो बस ये आ गया, ठीक है, अपना करके। और उसके बाद से देयर वाज नो लुकिंग बैक। एमसीए में तो कोई प्रॉब्लम आई ही नहीं, एवरीबडी वाज सो सपोर्टिव। Yes. वो है। So, Neeru, the story is very inspiring. Okay. What I want is, there are a lot of people who are asking questions. Somebody saying exam की sense कैसे दिलवाएं? ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है Okay. कि हमारे बच्चों को पता ही नहीं होता कि कोई क्वेश्चन पेपर है, टाइम से इसको। अब देखो, इसके पीछे एक बहुत बड़ी साइंस है, अंडरस्टैंडिंग ऑफ टाइम की साइंस है। अब वो सारे अगर आपको समझने हैं तो फिर तो आप हमारे मास्टर क्लास ज्वाइन करो, हमारे बूट कैंप्स ज्वाइन करो। वो टेक्निकल साइड तो हम आपको सिखा देंगे, A to Z कैसे होता है। बट फ्रॉम योर पर्सपेक्टिव एज अ मदर, एक एग्जाम की सेंस तुमने कैसे दी बच्चे को, वो बताओ। हाँ, मेरे टाइम तो कोई मास्टर क्लास नहीं थी, कुछ नहीं था, सिर्फ मदर इंस्टिंक्ट फॉलो करिए तुम्हारे मैंने। मेरे टाइम सिर्फ धक्के थे, धक्के। यस लेकिन वो मदरली इंस्टिंक्ट थी, और हमको भी यही था कि एग्जाम सेंस कैसे दिलाएंगे। तो उस टाइम पे मैं क्या करती थी कि जैसे बचपन से ही ये चीज शुरू कर दी थी, वेट नहीं करी हमने कि हाँ 8th के बाद सीरियस करेंगे बच्चे को, नहीं, शुरू से ही सीरियस कैसे किया। जब वर्कशीट्स मिलती थी स्कूल में, जूनियर केजी फर्स्ट स्टैंडर्ड में, व्हाट आई यूज्ड टू डू इज कि घर पे वैसी ही सेम जैसे एग्जाम में शीट आने वाली है, वर्कशीट या क्लास वर्क में मिलती थी, वो वर्कशीट्स मैं पहले ही घर पे बना बना के सेम बॉक्स सिस्टम, या मैं जो भी चीज सिखा रहे हैं अपन, ग्रेटर देन, लेस देन, व्हाटएवर, वो सब मैं उसी फॉर्मेट में क्वेश्चन 1 क्वेश्चन 2 करके ऐसे उसको देती थी। एंड टाइम लिमिट सामने सैंड क्लॉक लग करके लगा देती थी कि इतनी देर में एक क्वेश्चन होना है, एंड वो करता चला जाता था। एंड आई यूज्ड टू रीइंफोर्स विद पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट, जो भी इसको अच्छा लगता है वो चीज से। और उसके बाद इसको समझ आ गया कि अच्छा जो वर्कशीट मिलती है मम्मी खुश हो जाती है, जल्दी से खत्म कर देता हूँ, हो जाता है।
वहां से वैसे ही करके चलते आए, बड़े होने तक अपने आप चीजें समझ में आ गई, बड़े बड़े आंसर्स टाइम लिमिट में खत्म करने हैं और कैसे करने हैं। उसके बाद तो इतने बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स आए एमसीए में, बीसीए में, तब तो इसने रात को 12 बजे तक टीचर बोलती थी आज सबमिट हो जाना चाहिए, तो हम सब सो जाते थे 10 बजे, लेकिन ये रात को 12 बजे तक अपना प्रोजेक्ट करके सबमिट करके ही सोने जाता था। अरे ये कि मेरा चीज ये है, मैंने तो वो इतनी देखी है ना, हाँ, इसमें प्रैक्टिकल्स होते थे, 1-1 बजे ये सोता नहीं था, और छोटे वाले को बोल बोल के, देख भाई को वो जाग के कर रहा है, उसका एग्जाम है, उसे कोई फर्क नहीं किया वो नहीं किया। हमारा अलग स्ट्रगल है। छोटे वाले बोलते हैं, उसको तो बोलती है रिलैक्स कर, और मुझे कहती है पढ़। तो मैंने कहा उसको इसलिए रिलैक्स करने बोलती हूँ क्योंकि वो एक भी चैप्टर छोड़ता नहीं है कि इसमें से पूछ लिया तो Yes. और तेरे मतलब को वाकई, उठानी नहीं हाँ, किताब। न्यूरोटिपिकल्स की तो एक अलग ही स्ट्रगल है वाकई। यस यस, उनका ओवर कॉन्फिडेंस, अरे हो गया, अरे हो गया, हाँ वाकई। या वी हैव टू एक्सट्रीम्स, टू एक्सट्रीम्स टोटली। हमें मीडियोकर तो कुछ मिला ही नहीं है लाइफ में नहीं मीडियोकर नहीं, एक्सेप्ट नहीं ऑटिज्म किया। संभल जाता है आसानी से, हाँ ऑटिज्म हाँ, आसानी अब से लग रहा संभलता है, अब लग रहा है कि वो ज्यादा इजी है संभालना है। न्यूरोटिपिकल संभाल के दिखाओ तो जाने, बाय गॉड दैट सच्ची। टू इन टीनेज। रियली ट्रू दैट। मेरी ऑटिज्म बेबी 5 साल की है, स्पीच नहीं है उसको, स्पीच प्रॉब्लम ज्यादा आ रही है। कुछ कहना चाहोगी, क्या करना चाहिए इनको? ऋषभ के जैसे मैंने कहा बैबलिंग भी नहीं थी, है ना, तो उसको जैसे हमने स्पीच थेरेपी सिखाई थी, तो उसमें अलग अलग टेक्निक्स, यू हैव टू फर्स्ट फिगर आउट बहुत अच्छी कोई स्पीच थेरेपिस्ट जो उसको सिखाए, लेकिन उसमें आप सोचो कि स्पीच जनरेट करनी पड़ेगी, अगर उसकी बिल्कुल भी स्पीच नहीं है तो। हमने ऋषभ को कैसे सिखाई थी कि आप खुद भी बोल के देखो, म भ ब, सब में लिप्स मिल रहे हैं, करेक्ट, तो वो कहाँ पे मिलते हैं, Brilliant. म पे, कहाँ पे मिलते हैं ब पे, कहाँ पे मिलते हैं भ पे। बच्चे को वो साउंड आप जब खुद उन By मम्मी the को way, बोल रही हूँ, ये जब बैठ बाय के द वे देखोगे, ये मदर है, और ये बाइलेबियल साउंड्स की बात कर रही है जो हम थेरेपिस्ट करते हैं। बाइलेबियल साउंड्स, म प ब, अमेजिंग तो नीरू। वो चीज फिर हम न बोलना सिखाते थे, तो ऐसे सिखाते थे, न, यहां से न साउंड आ रही है, क ख यहां से आएगी, तो वो चीजें इसको जब ऐसे करके सिखाई हैं, मुझे याद है थेरेपिस्ट बोलते थे टीवी बंद कर दो, टीवी बंद कर दो। मैं कहती थी बच्चा बैठ के सीरियल तो देख नहीं रहा पूरा टीवी का, मैं इस अपॉर्चुनिटी को भी नहीं छोड़ूंगी कि उसको कुछ तो सीखने मिलेगा। और मैं कौन सा पूरा दिन टीवी देखती थी, अपन भी थेरेपीज करते हैं, घर के काम होते थे, थेरेपी भागना, सारा दिन तो बिजी होते थे, आधा घंटा मैं अनवाइंड करने सीरियल चला के बैठती थी, और ये उसमें अपनी जो मर्जी करे, इसको भी अनवाइंड होना है, हर टाइम इंस्ट्रक्शंस फॉलो करना बच्चे के लिए भी टायरिंग होता है। तो मैंने क्या किया, ये ना क नहीं बोल रहा था, त ही बोलता था हमेशा, तो वो सीरियल आता था कुमकुम उस टाइम पे, तो ये गाना आता था कुमकुम से, तो ये बोलता था तुम से तुम हमेशा। लेकिन जब हम वर्क कर रहे थे को, तो इसने जैसे ही वो गाना आया, आफ्टर अ वीक हम इसको सिखा के थक गए थे को, जब वो गाना आया तो ही सेड तुम कुम, इसने ऐसे स्टार्ट किया। एंड मैं रोटी बना रही थी, इस थेरेपी से आई थी दोपहर को 2:30 बजे, भागी बेलन छोड़ के इसके पास, मैंने कहा वेरी गुड, क्या बोला, कहता है कुमकुम, मैंने कहा वेरी गुड, पागल हो गई उस दिन। ऐसे करके हम दोनों, उसको समझ में आ गया कि बस आज ये हो गया, मम्मी खुश हो गई, और मेरी खुशी इसके लिए आज तक बहुत मायने रखती है। यस यस यस। अभी मेरे सारे दर्शकों को, ऑडियंस को समझ आ गया होगा कि ये नीरू मेरी फ्रेंड क्यों है, एक जैसे है ना हम दोनों ही, टोटली। इसलिए थेरेपिस्ट और स्टूडेंट के रिलेशन से वो परे फ्रेंड्स के रिलेशन में भी चला गया, बिकॉज चला एट गया द एंड ऑफ द डे, हाँ। एट द एंड ऑफ द डे एक ही चीज है और जो कॉमन है। जो चीज हमने स्ट्रगल करी वो एक दूसरे से रिलेट कर पाते हैं, एक दूसरे को अच्छे से समझ पाते हैं, व्हाट ट्रू फ्रेंड्स कैन बी। यस यस। और एक चीज है जो मैं सबको बोलना चाहूंगी, आप ना मरिए स्वर्ग ना जाइए।
फिर भले ही Correct. वो नीरू थी जिसके पास में थेरेपीज की कोई सेंस नहीं थी, रजनी थी जिसके पास थेरेपीज की कोई सेंस नहीं थी, हमने टक्करें मारी, जो भी किया, आज हमने एक प्लेटर पे सजा के आपको सब कुछ दे दिया है। बाइलेबियल साउंड्स कैसे सिखानी है, एस्पिरेटेड साउंड्स कैसे सिखानी है, लैंग्वेज पिरामिड क्या चीज है, कॉम्बिनेशन ऑफ व्हाट, हु, वेयर, व्हेन, व्हाई, हाउ, हमें कोई सिखाने नहीं आया था। ये सब हमने क्रिएट किया है। लेकिन अगर हमने जिनके पास कोई इनपुट नहीं थी वो तक कर गए, तो यार जब आपके पास सारी इनपुट है तो आपको रोने गाने की जरूरत क्या है ना? ये बात तो बिल्कुल सही है रजनी कि हम मदर्स अभी हेल्प करने के लिए रेडी हैं। उस टाइम कुछ नहीं था। हाँ, मैरी बरुआ मैम वाज देयर एंड उन्होंने भी बहुत गाइडेंस दी है, उससे ही काफी चीजें हमें समझ में आई हैं, बिकॉज डेफिनेटली गाइडेंस तो चाहिए थी, है ना। उन्होंने हेल्प करी, जैसे मैंने कहा, दीपमाला मैम ने हेल्प करी एक्सप्रेशन सिखाने में, लेकिन हमने जैसे क्लब करके अपने बच्चे के साथ एक्सपीरियंस करके, वो थे थेरेपिस्ट, हमने आपको एग्जाम्पल अपने सामने रख दिया, ये है ना, ये प्रोग्रामिंग करके बच्चा ये ऐसा बन गया। अब प्रोग्रामिंग आपको करनी है अपने कंप्यूटर्स की, क्योंकि आपके लिए पास भी भगवान ने ब्लैंक कंप्यूटर भेजा है। अब आप उसको रोबोट बनाओ या ह्यूमन बीइंग की तरह प्रोग्रामिंग करो, क्योंकि मुझे दीपमाला मैम ने भी यही बोला था कि रोबोट बनाना है, उठ तो उठ, बैठ तो बैठ ऐसे, या ह्यूमन बीइंग बनाना है जो खड़ा रहेगा, और आप बोलोगे बैठ जा तो बोलेगा नहीं बहुत देर से बैठा हूं, अब मेरा खड़ा होने का मन है। हो गया। तो आप ये डिसाइड कर लो एंड वर्क अकॉर्डिंगली। बस, तो अब करना माँ को ही है, क्योंकि वो जो इंस्टिंक्ट से कर सकती है और जानती है जितना बच्चे को, वो कोई नहीं कर सकता। यस। और जितना जल्दी पोटेंशियल निकालोगे खींच के बच्चे का, उतना जल्दी आपके लिए भी इजी हो जाएगा, उसका एक्सप्रेशन भी आ जाएगा, थिंग्स विल बी इजियर। ओके, ये लास्ट क्वेश्चन लेते हैं, वी हैव एक्सीडेड आवर टाइम। रितु बारी 8613 सेइंग, मेरा बच्चा 13 साल का है, स्पीच है, बड़े सेंटेंसेस नहीं बोलता और ना ही पैदी करता, ये पता नहीं क्या है, पढ़ाई करता। अच्छा, पढ़ाई भी नहीं करता और बड़े सेंटेंस भी नहीं बोलता। ओके, मैं आंसर दूंगी तो मैं फिर एक थेरेपिस्ट की तरह दूंगी, तो अब तू दे ले। यस। ठीक है। जैसे बड़े आंसर्स नहीं देता है, तो मैंने जो जैसे कराया था कि अगर वो उसकी ड्राइंग अच्छी है तो आप ड्रॉ करके, या अगर उसकी ड्राइंग अच्छी नहीं है आप ड्रॉ कर दो, जरूरी नहीं है आपको पूरा परफेक्ट फिगर बनाना है। ऐसे बनाते थे ना अपन, दो टांगे एक मुंडी। अब तो एआई के थ्रू अब तो पूरा AI ही मिल जाएगा। हाँ, पूरा ही मिल जाएगा, सीन क्रिएट करके बना सकते हो। तो उसको सीन क्रिएट करके आप एक रफ ड्राइंग पेपर पे उसको सिखा सकते हो कि ये ऐसे, इस सिचुएशन में आप क्या बोलोगे। तो वो आप कर, मतलब अब जैसे सपोज सिंपल से एग्जांपल देती हूँ, बच्चा रोड पे चल रहा है और गिर गया, ठीक है, चोट लग गई है। अगर वो आपको पूरी घर आके इंफॉर्मेशन नहीं दे पा रहा है कि मेरे को चोट लग गई, या आपके साथ वहां पे खड़ा है, तो आप उसको घर आके ड्रॉ करो, रोड पे वो चोट लगी हुई और बच्चा बैठा है और वहां से ब्लीड हो रहा है, अपन ड्रॉप्स बना दो ऐसे करके, और पेन हो रहा है, बच्चा रो रहा है, ऐसे रोता हुआ बच्चा भी बना दो, और साथ में उसको लिखो रोहन, सपोज बच्चे का नाम है, लिखो रोहन फेल डाउन, है ना, या रोहन गिर गया। तो अब वो जैसे आपने नीचे लिख दिया कि मम्मी को बताएगा, क्या करेगा, मम्मी को बताएगा मैं गिर गया, चोट लग गई, या सिर्फ चोट लग गई। आपको बच्चे का लेवल पता है कि वो अगर पूरा सेंटेंस नहीं बोल सकता तो 2 वर्ड से स्टार्ट करो, चोट लगी। अगर वो उतना भी नहीं बोलता तो चोट, है ना, और फिर 2 पे आ जाओगे, चोट लगी, या अगर चोट लगी बोल सकता है तो उसको बोलो मुझे चोट लग गई, मैं गिर गया, पूरी वर्ड। तो फिर वो उसको उसके लेवल के हिसाब से आप ड्रॉ कर करके उसको सिखाओ, उसको चीजें समझ आएंगी। स्कूल में किसी का बर्थडे था, सिंपल सी बात है, वहां स्कूल से आया, या बिल्डिंग में किसी का बर्थडे था तो उसके बारे में बोल सकता है वो आके आपको, मम्मी रिया का बर्थडे था, है ना, या चॉकलेट मिली। 2 वर्ड से शुरू करो, 3 वर्ड पे जाओ। कैट दिखी, आप रोड पे जा रहे हो, फाइंड द अपॉर्चुनिटीज, रोड पे ले जा रहे हो, डॉग दिख गया, कैट दिख गया, घर पे आके सीन बनाओ और उसको सिखाओ, तो अपने आप वो धीरे 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 चीज डेवलप हो जाएगी।
ब्रिलियंट। अगर हम इसको थेरेपी की सेंस में बात करते तो आई वुड हैव सेड एक्टिव वर्किंग मेमोरी इंक्रीज करो फ्रॉम 2 words to 3, from 3 words to 4. And here is a mother who's never been a therapist and saying the same thing. यस मेरे को वही मैं बोल रही हूँ, टेक्निकल वर्ड्स मे बी आई डोंट नो, लेकिन वो करना वो सब तरीके सेम ही है। और अगर आपको भगवान ने माँ या पापा बनाया ना, और आप डेडिकेटेड हो बच्चे की तरफ, अगर वो आपको बर्डन नहीं लग रहा है कि हाय ये क्या हो गया मेरी जिंदगी के साथ, तो आपको तरीके आ ही जाएंगे, आपको समझ आ जाएगी। पहले बाइलेबियल्स ही सिखाते हैं, म प ब, आपको समझ आ जाएगी प के लिए इधर। पहले तो खुद की थेरेपी करो, फिर कि भैया मैं एक्सेप्टेंस तो लेकर आऊं, मैं ही रोती रहूंगी तो उसको कैसे खड़ा करूंगी। टोटली है ना, तो खड़ा। और ये इसके लिए मैं एक आपको सही बात बताऊं, आप लोग तो भगवान की दया से ठीक हो और ठीक रहो। आई वॉज बेड रिडन फॉर 8 years, है ना, तो वहां से मेरे को ये लग रहा था कि मेरी जिंदगी कहाँ जा रही है, मैं बच्चों पे वर्क ही नहीं कर पा रही, और वर्क नहीं कर पा रही तो सारी चीजें जो है रुक जा रही हैं। तो मेरे को अपने लिए, क्योंकि क्या होता है, हम मदर्स अपने लिए ना एक पानी का ग्लास लेके भी चैन से नहीं बैठती हैं कि हम तसल्ली से 10 सेकंड पानी पी लें, वो गिल्टी फीलिंग आती है। फिर मैंने रियलाइज किया, ये मैं अपनी वो बता रही हूँ कि फिर मैंने जब रियलाइज किया कि अल्टीमेटली मैं ड्राइवर रख लूं, मैं मेड्स रख लूं, मैं बच्चों को थेरेपी ले जाने को थेरेपिस्ट कितनी भी रख लूं, लेकिन जब तक घर पे 24 घंटे काम नहीं होगा तब तक ये कैसे होगा सब कुछ। तो अल्टीमेटली मुझे अपनी हेल्थ पे काम करना है, मुझे ठीक होना है पहले। और वो ठीक होना मेरे, ऐसा नहीं था कि मैं काम नहीं कर रही थी, मैं डॉक्टर्स को नहीं दिखा रही थी। Since 16 years I was suffering from slip disc, तो मैं डॉक्टर्स को दिखा रही थी, 2 सर्जरी हो चुकी थी स्पाइन की मेरी, उसमें मेरे को सब चीज हो रहा था। अब सर्जरी हो गई तो मैं स्पाइन को अपने आप तो नहीं ठीक कर सकती थी ना, तो ऐसा नहीं था। बट जिस दिन मैंने पॉजिटिव सोचा कि मुझे ठीक होना है और मुझे अपने बच्चों के लिए खड़ा होना है, तो वो मेरा पॉजिटिव सोचना मुझे धीरे 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 उस रास्ते पे ले गया, और मेरे को अपने आप रास्ते मिलते चले गए कि मेरे को कैसे ठीक होना है। और वो अपनी उस पे काम किया तो धीरे धीरे खड़ी हो गई और अपने बच्चों पे काम कर पाई। लेकिन रोते रहना होता कि हाय मेरी तो लाइफ यहाँ चली गई है, अब तो मैं कैसे बच्चों को ठीक कर पाऊंगी, या ये हो गया, या मेरे पास एक्सक्यूज हो जाता कि अब तो मैं ऋषभ पे काम नहीं कर सकती, मैं खुद ही खड़ी नहीं हो सकती। तो वो सिर्फ एक्सक्यूजेस होते हैं। लाइफ को अपने हाथ में लो, चार्ज अपने हाथ में लो, और यू कैन डू वंडर्स। Absolutely. Thank you so much, Neeru. It was amazing talking to you. And जय बना रहा है प्रोग्राम ऋषभ के पास आने का। मैं भी बीच में से टाइम निकालूंगी। बिल्कुल, बहुत टाइम से, जब से तुम शिफ्ट हो गई यहाँ से and you went to Jaipur, so we will also meet up and people. बस एक चीज बोलना चाहूंगी, अगर नीरू और मैं, जब हमारे पास कोई सिस्टम्स नहीं थे, कोई स्ट्रैटेजीज नहीं थी, कुछ नहीं था यार कुल मिला के। यस, मेरी मैम की हेल्प थी, बट वो भी अकेली बेचारी कितनों को हेल्प करती है ना। तो उसके बीच में भी हमने अपने जुगाड़, मंत्र, तरीके, सिस्टम्स लगा के, और पर ये थेरेपी सब उन्होंने, हाँ वही कह रही, ये सब उन्होंने तो नहीं सिखाया ना। कितना सिखाती, एक एक बच्चे को तो आके पर्टिकुलर नहीं सिखा सकती, हर बच्चे का चैलेंज अलग है। हाँ वही बात है। तो सिचुएशन को अपने बच्चे की तरह हिसाब से संभाल के करने के लिए देयर इज अ सर्टेन अमाउंट ऑफ लर्निंग दैट पीपल यू विल नीड। आज की डेट में आपको उतना स्ट्रगल नहीं करना पड़ेगा जितना शायद रजनी और नीरू को करना पड़ा था, ठीक है, क्योंकि हमारे पास रिसोर्सेस कम थे, आपके पास रेडी रिसोर्सेस हैं। अगर आप सीखना चाहते हो तो हमारा 3 day पावर पैक, अभी एक्चुअली जो लेटेस्ट आ रहा है वो तो 2 day बूट कैंप आ रहा है, आगे फिर 3 day वाले भी आ रहे हैं। तो टाइप आई, इन विच आई विल टीच यू ऑल ऑफ द थिंग्स फ्रॉम जीरो राइट टू कंप्लीट, कि ये कैसे होता है, क्या होता है। Many of the things you have heard from her as a mother, she may not know the technical terms like she said,
but she's been doing those. And rather than reinventing the wheel and making 10 mistakes, which she did, which Rajni did, you guys don't have to do, because हम आपको सिखा देंगे कौन सी मिस्टेक मत करना, कहाँ मत पर करना, बेटा करेक्ट। गिर जाओगे। जैसे 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 टॉयलेट ट्रेनिंग के टाइम पे हमने जो मिस्टेक करी है, नाउ आई टेल पीपल कि यहाँ पे ऐसा होगा और वहां पे तुम्हें ये हाँ, ये ध्यान मत रखना करना। है। हाँ, अभी academics में हमारे लिए हाँ कैसे बच्चा फेल नहीं होना चाहिए, हाँ राइट? कैसे राइट दोस्त बनाने में बाकी बच्चों से बुली नहीं होना है, दोस्त बनाना है। सो मच सो कि फिर वो इंडिपेंडेंट। आज मेरे को जय बोलता है, आई एम नॉट गोइंग टू लिव इन दिस हाउस। आई सेड या आई नो, आई ऑल्सो डोंट वॉन्ट यू लिविंग इन दिस हाउस, आई विल फाइंड अ हाउस। अभी रुक जा, आज तो MBA का इंटरव्यू हुआ है, अभी 2 बिल्डिंग छोड़ के इसके लिए घर ढूंढेंगे कि अकेला रहना सीख। तो इसके लिए माओ को भी जिगरा रखना पड़ता है। ऐसा हमारे लिए इजी नहीं होता कि वहां छोड़ दो और कर लो, या ट्रेन में, लोकल ट्रेन में बॉम्बे की चढ़ा दो, सीख जाएगा अपने आप। नहीं, कैलकुलेटेड रिस्क लेके कैसे कैसे हमने किया है कि रोड पार करनी कैसे, ऑटो से जाना कैसे, सब सिखाया। देन तो इसलिए all of you who are interested to learn, genuinely learn, know that it is possible with your child, know that जो आपके बच्चे की आज की रियलिटी है, ये हमेशा की रियलिटी नहीं होगी। आज के टाइम एंड एज में इट्स गोइंग टू बी सो मच इजियर देन व्हाट इट वाज। अभी लगा दो। इट इज सो मच इजियर, बट आपकी विलिंगनेस होनी चाहिए। सो जिसकी जिसकी विलिंगनेस है, जो सीखना चाहते हैं, हमारा 2-day बूट कैंप आ रहा है। टाइप आई एंड लीव योर फोन नंबर देयर, आई एंड योर फोन नंबर, एंड माई टीम विल गेट इन टच। या सुप्रिया, आप यहाँ पर हो? सो सुप्रिया, if you're here, just send them the link, okay? Send them the link, and don't send them the link to the master class, because अभी latest 2-day intensive bootcamp training program आ रहा है। So just take down the numbers and send the numbers to Amrita. Amrita will send them the link for the 2-day program, okay? याद रखो, जितना सीखोगे, the more you will learn, the better your child will be. Here's a lady whose son is already an MCA, Masters in Computer Application. Yes, and working in a bank as deputy manager. Yeah, so in the morning I called her and I said, hey Neeru, I want you there on Insta. And Veer is Veer, naam dekho. Rishabh is assistant manager. She said, no, he's deputy manager. I'm like, okay. So he's got a promotion. And here's a lady whose son is now, after 2 years of work experience as a bachelor's, as a hotel management graduate, is now venturing into his master's, went for his interview today, got selected. 4th of September, he starts his hotel management course. Here is his, not hotel management, I'm sorry, MBA in hospitality management. He had taken his papers. So here is his, the form that he has to fill up, put all the applications. He took this today. The file he took today. Yeah, he appeared for his exams, for his interview, and he'll be starting on 4th of September. So, just want you to know, all of this is possible, irrespective of what your kid looks like today. If you are serious about your child's growth, okay, stop wasting your child's time, okay? Take things in your hands, क्योंकि बाहर से कोई नहीं आने वाला। कोई मिल गया का जादू वो कोई मिल गया में ही वो है। हम ही कर सकते नहीं, वो जादू हम है, करेंगे तो वो हम है। Yes, और वो very right. ये हाँ, और कभी भी मतलब उस ग्लूमी फेज में नहीं जाना है, या दुनिया ने आज मेरे बच्चे को ये कह दिया, आज वो कह दिया। मैं नहीं, मेरे को तो अगर कोई बच्चे को ऐसे कह देता था ना, तो कहती थी अरे वाह, एक और चीज सिखाने का मौका मिल गया, एक और चैलेंज आया। Yes. तो मजा आएगा। Yes. आज इसको इसमें से ये सिखा पाऊंगी, तो रोने की बजाय उसमें से क्या सिखा पाऊंगी, उस पर वर्क करती थी। एंड थैंक्स टू देम,
जिन्होंने ये चैलेंजेस क्रिएट किए। उन्होंने हमें सिखा दिया कि हमारे बच्चे को क्या नहीं आता था। क्या क्या सिखाना Absolutely. है, क्योंकि Yes. मैं यही बात कहती हूँ, हम कालीन पूरी दुनिया में नहीं बिछा सकते, जूते हमें ही पहनने पड़ेंगे ना रोड पे चलने के Yes. लिए, कांटों से बचने। Yes. तो बस Yes. वही Yes. करना है। So please type I and your phone number, and my team will get in touch with you. And thank you so much again, Niru. And I'm soon going to catch My up with pleasure. you. Yeah. Sure. All right. I'll be Chalo. looking forward. Chal, Yeah. see you. Bye. 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 Bye.